अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा कि मेरी ई चुपाल सीरीज है सोशल मीडिया पे, इसमें मैं मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करके उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद अब जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो ही रहा है, कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इस सिलसिले में आज की जो ई चुपाल की सीरीज़ है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर साजिद बशीर हैं, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं, उनकी वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना कि आपने फार्मेसी की डिग्री कहाँ से की, बल्कि मैट्रिक से स्टार्ट करें कि मैट्रिक आपने कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, फार्मेसी कहाँ से? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Dr. Sajid Bashir. Born in Quetta, I got my metric from Tamil Nadu Public School, Quetta, because my family was residing there. Then I done my FSC from Government Science College, Quetta. After FSC, I got admission in DVM, Faisalabad. But unfortunately, I did not set there, so I came back to Quetta. And fortunately or unfortunately, I got admission in faculty of pharmacy, Department of Pharmacy, University of Balochistan. I did my B Pharmacy from University of Balochistan in 1987. Then I got admission in November 87 in MPhil from Punjab University. I got my MPhil under the kind supervision of Professor Dr. Naeem Muzaffar in 1990 from University of the Punjab, Lahore. Then I came back to Quetta and I applied for as a lecturer in University of Balochistan. So I was selected in 1990, but unfortunately, posted are the recruitments are banned due to the economic condition of country at that time. So I started my job as a medical representative. Then I got a job as a school teacher. I teach chemistry to a metric class. Meanwhile, in 1992, September 92, I got appointment as a lecturer in University of Balochistan. After 4 years, I become assistant professor there. Then I got admission in a PhD from in Punjab University in 2004. At that time, there was a PhD admission was on registration base. So there was no regular classes of PhD. There was no coursework, so I registered myself as a PhD scholar in Punjab University in 2004, and in 2007 I submitted my thesis. In 2008 I have a final viva of PhD, and I got PhD degree from Punjab University under the kind and supervision of Professor Dr. Muhammad Jamshed, ex-dean and principal, College of Pharmacy, University of Punjab. Now he is working as a dean, faculty of Pharmacy, University of Central Punjab. So that is my brief introduction for my education. Then in 2000, due to the prevailing situation of law and order and uncertain condition in Pakistan, I joined as an associate professor on contract basis in University of Sargodha in 2009. Then a post of professor or reprise in 2010. I applied for as a professor in pharmaceutics. So in 2012, I became the professor of pharmaceutics and become the chairman, Department of Pharmacy, University of Sargodha. In 2013, I became the dean. Then this department became the faculty,
and I become the Dean Faculty of Pharmacy, University of Sargodha in 2013. And from 2013 to till date, I am working as a Dean Faculty of Pharmacy, University of Sargodha. That is my brief introduction of myself. So, at that time, there was just 12 or 13 teachers under my control. Now we have enough faculty. I was the only PhD at University of Sargodha at that time. Now we have 24 PhDs, and I have produced myself 9 PhDs in pharmaceutics and other faculty. This in other department of pharmacology. I have produced 7 PhDs. So when I joined University of Sargodha, there was no MPhil classes and no PhD classes. So I started MPhil and PhD in 2 disciplines, pharmaceutics and pharmacology, in MPhil and PhD pharmacology and PhD pharmaceutics. So by the grace of Almighty Allah, now there are 4 MPhils are running in faculty of pharmacy, pharmaceutical chemistry, pharmacology, pharmaceutics, pharmacology, and pharmacy practice. And 2 PhD we are running in pharmaceutics and pharmacology. आपका जो इंट्रोडक्शन था कि आप मैट्रिक से लेके अब तक का जो पीरियड है उसमें सबसे आपने बताया कि आपने डीवीएम फैसलाबाद में आपका एडमिशन हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसको कंटिन्यू कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फार्मेसी आपका फर्स्ट चॉइस थी या सेकंड चॉइस? देखें, फार्मेसी मेरा चॉइस नहीं थी, आई गॉट एडमिशन बाय चांस, क्योंकि एफएससी के बाद हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है और स्टूडेंट की भी ख्वाहिश होती है कि या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। वो ट्रेंड पहले भी था और वो ट्रेंड आज भी है। तो अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में ये है, बलूचिस्तान में मेरिट नहीं होता, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें होती हैं। कोटा सिटी में ज़्यादा कंपटीशन होता है, कोटा सिटी की 10 सीटें होती हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में मेरिट कम होता है। वहाँ से इवन सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन को भी एडमिशन मिलता है, कोटा सिटी से फर्स्ट डिवीजन वालों को भी एडमिशन नहीं मिलता। तो मुझे एडमिशन नहीं मिला तो मैं डीवीएम में चला गया फैसलाबाद में, लेकिन मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगा या मेरा जहन आमादा नहीं हुआ कि डॉक्टर बनते बनते आप वेटनरी की तरफ चले जाएं। तो फिर मैंने आके कोयटा वापस आके बीएससी स्टार्ट की। मीनवाइल मेरा बी फार्मेसी में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। किसी दोस्तों ने मेरा घर वालों से मशवरा किया, उन्होंने कहा आपने करना है। मैंने यूं बाई चांस फार्मेसी करना शुरू कर दिया। ना घर वालों की तरफ से गाइडेंस थी, ना उसके स्कोप का पता था। बस एक नई फील्ड शुरू हुई थी 1983 में, वहाँ पे 80 में शुरू हुआ। 83 में मैंने एडमिशन लिया, तो ये तीसरा बैच था फार्मेसी का वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह जो करता है किसी इंसान के लिए वही बेहतर करता है। आज मेरे जो क्लास फेलो एमबीबीएस में थे वो आज भी 17वें 18वें ग्रेड में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे 21वें ग्रेड में एज ए डीन इंजॉय कर। तो ये अल्लाह ताला जो किसी के लिए बेहतर करता है, ये चाहे बाई चांस हो या बाई चॉइस हो, अल्लाह उसके लिए एक सिलसिला पहले से उसकी पैदाइश से सिलसिला शुरू कर देता है। तो मेरा एक बिलीव है कि आपके रिस्क जहाँ लिखा है वो आपको मिलेगा। किस तरह मिलेगा, लेकिन उसका एक वो है कि आपने मेहनत कर। अगर आपने मेहनत कर ली दिल जमीन से, अल्लाह पे भरोसा करके, फिर अल्लाह ताला जरूर आपका हाथ। और मुझे ये बिलीव है उसका कि ना मुझे सरगोदा का पता था, ना मैंने पहली दफा इस शहर को देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो बयान करने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप फार्मेसी की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे बाय चांस आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं मैट्रिक में एडमिशन लिया, साइंस रखी, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। वहाँ पे लिखा होता है कि बायोलॉजी पढ़ पढ़ के आप क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, इस तरह। तो वहाँ पे फार्मेसी भी लिखा। सबसे पहले तो मेरे से फार्मेसी पढ़ा ही नहीं गया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब मैंने टीचर से पूछा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था ये बेटा फार्मेसी है और ये उसको कहते हैं जो कि मेडिसिन का नॉलेज होता है। उस वक्त मेरे ज़हन में क्लिक से कम कुछ नहीं लगता है। तो फिर मैं जब एफएससी में गया, एफएससी में भी मैंने टीचर से पूछा कि सर एफएससी के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो
जाहिर बात है फर्स्ट चॉइस जो होती है वो एमबीबीएस डॉक्टर ही होती है, बीडीएस होता है और इस तरह की चीजें थी। उन्होंने कहा था कि फार्मेसी भी बड़ा अच्छी चीज है, और अल्लाह का ऐसा करना हो कि मेरे जब एफएस में मार्क्स आए तो इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं फार्मेसी में एडमिशन हो पाता। तो फिर मैंने कहते हैं अगर आप किसी अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो हर कोई हम सारे जो दोस्त थे हम सारे डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। उन्हीं दौरान ना मुझे पता चला कि बहादुर जफर यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया। तो एक और मेरा दोस्त था वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा था, एफएस इकट्ठे की थी, तो हसन नाम था उसका। मैंने उससे कहा कि हसन यार मुल्तान में एडमिशन आया है, चलो वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। तो कहता चलो ठीक है। हमने एक ही फॉर्म फिल किया, वहाँ से प्रोस्पेक्टस मंगवाया, हमारे रिलेटिव्स थे, फिर हमने जाकर फॉर्म जमा करवाया, उसमें सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर दिया। मेरे घर वाले सेल्फ फाइनेंस पे वहाँ पे नहीं मांगे उस वक्त ना, उसका वहाँ पे एडमिशन हो गया। मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने उसे बताया था, उसका एडमिशन नहीं हुआ, मेरा एडमिशन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़े एडमिशन लेट होते थे, जनवरी फरवरी। मैंने उसी तरह मरे कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया, 3-4 महीने मैंने बीएससी वहाँ पे पढ़ी। फिर मेरे जाने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, और वहाँ पे मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान में फार्मेसी की जब आप बात करेंगे, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी वो अच्छा होगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है बाय चॉइस मैं कह सकता हूँ, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ वाकया कुछ ऐसे हो गए, आप इसको बाय चॉइस भी कह सकते हैं, बाय चॉइस भी कह सकते हैं। तो आपकी जो ड्यूरिंग एजुकेशन पीरियड है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर लें या मैट्रिक या एफएससी की, कोई किस टीचर से आप सबसे ज्यादा मुतासर हुए? अगर गुलिस्तान यूनिवर्सिटी के हिसाब से गुलिस्तान यूनिवर्सिटी में देखें तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली टीचर कराची से एजुकेटेड थे, क्योंकि कराची से बहुत से लोग कोटा में फार्मेसी डिपार्टमेंट बना तो कराची से ही लोग आए। तो मेरे जो अच्छे टीचरों में से थे मैडम इशरत बुखारी, प्रोफेसर डॉक्टर इशरत बुखारी, जो आजकल अख्तर सईद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। वो मेरी एक अच्छी टीचर थी, अच्छी रहनुमा थी, बाद में वो मेरी कुलीग भी बनी। इसके अलावा डॉक्टर तबरेज साहब थे, वो भी हमें फिजियोलॉजी उन्होंने ऐसी पढ़ाई के, और मैडम ने हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई, मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ाई। और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिहाज से देखें तो डॉक्टर नईम मुजफ्फर जो मेरे सुपरवाइजर थे एमफिल के, और बाद में जो डॉक्टर जमशेद और डॉक्टर बशीर, इनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ कि डॉक्टर बशीर साहब ने मेरी पीएचडी में बड़ी हेल्प की। डॉक्टर जमशेद मेरे सुपरवाइजर थे, डॉक्टर बशीर मेरे को सुपरवाइजर, मेरी थीसिस राइटिंग में बड़ी हेल्प की। मैं इन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये मैं इंस्पायर्ड हूँ डॉक्टर जमशेद से, डॉक्टर नईम मुजफ्फर से, डॉक्टर बशीर से। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सीट पे हूँ, तो अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ ये टीचरों का अव्वल दखल है। दूसरी बात यह है कि स्कूल के टीचरों को भी बहुत भूलना नहीं चाहिए। मेरे टीचर थे वहाँ पे डॉक्टर फजल हक साहब, तामिर नोक स्कूल के प्रिंसिपल, बाद में वो कॉलेज के प्रिंसिपल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कराए, उनको करवट जन्नत नसीब करे। वो भी मेरे एक आइडियल इंसान थे। वो मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, जो हमें इस्लामियात पढ़ाते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे आगे हमें मैट्रिक में। तो इन टीचरों से मैं इंस्पायर्ड हूँ। जैसे आपने कहा कि चांस और चॉइस की बात है, तो फार्मेसी में आज भी जिन लोगों का मेडिकल में दाखिला नहीं होता, वो यहाँ पे एडमिशन भी उनका होता है बाई चांस। तो बाई चांस एडमिशन से मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ कि आप लोग बाई चांस आ गए हैं। आप लोग 1 साल तक तो ये यकीन ही नहीं करते कि हमसे कम नंबरों वाले जिनके पास पैसा था वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हमारे अच्छे नंबर थे, हम 1 नंबर या 2 नंबर से या एंटी टेस्ट की वजह से रह गए। तो 1 साल तक उनको इस माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जब वो माहौल में एडजस्ट होने लगते हैं तो वो उनका कोई ड्रॉप हो जाता है, या किसी की सप्ली आ जाती है, या किसी का ग्रेड बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा मैंने देखा जिनके टॉप नंबरों वाले एडमिशन थे वो बेचारे ड्रॉप हो जाते, क्योंकि वो उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि डॉक्टर बनते बनते हम क्या फार्मासिस्ट बन गए। दूसरी बात ये कि जब स्टूडेंट, मैं कहता हूँ फार्मेसी प्रोफेशन राइज करेगा जब स्टूडेंट यहाँ पे बाई चॉइस आएंगे कि हाँ मैंने फार्मासिस्ट बनना है, तो वो एक माइंड सेट लेके आएंगे। तो फार्मेसी प्रोफेशन को अभी तक फार्मेसी प्रोफेशन जिस स्पीड से डेवलप होना चाहिए था इंजीनियरिंग की तरह या मेडिकल की तरह, वो डेवलप नहीं हुआ। उसका मेन रीजन ये है कि हम बाई चांस यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और हम उसको आखिर तक एक्सेप्ट नहीं करते। 4th ईयर करने के बाद भी करते हैं, कोई कोशिश करता है कि मैं फॉर्म डी कर लूँ, मैं जाके बाहर से एमबीबीएस कर लूँ,
1 साल का लगा लूँ, 2 साल का लगा लूँ। फिर जिनके पास कोई वसाइल नहीं होते, फिर वो बाहर मजबूरी है इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लेते। तो ये एक रीजन भी है फार्मेसी की डेवलपमेंट ना होने का कि इधर स्टूडेंट ज्यादातर मोस्टली बाई चांस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बेसिकली इसमें ना कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती है। मैट्रिक या इंटर में लोगों को स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए कि आप जो भी इंजीनियर रखते हैं या मेडिकल रखते हैं, आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। हमारे ज़माने में या आपके ज़माने में MBBS BTech या फार्मेसी था। अब इतने ज़्यादा कोर्सेज आ गए हैं कि DPT की बात कर लें, आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं। उस वक्त इन दोनों में बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी बड़ी इमर्जिंग फील्ड आ रही है, वो नहीं था। तो जब तक स्टूडेंट्स की सही काउंसलिंग नहीं की जाए, ये उनको वो सही नहीं पता चलता। देखिए फॉरेन में जो हाई ग्रेड के बाद ना जो होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाती है। तो उनको बताया जाता है कि ये प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में सैचुरेशन हो गई है, इस प्रोफेशन में इतनी जॉब्स अवेलेबल है, इतने मेरे कजन है उधर इंग्लैंड में, अमेरिका में, उन बच्चों को हाई ग्रेड के बाद भी, यानी कि वो हमारे FSC के बाद भी पता होता है कि अभी BDS की डिमांड है, अभी डिप्लोमा इन डेंटिस्ट की डिमांड है, फार्मेसी में जॉब की सैचुरेशन हो गई है। तो ये चीजें उनको नॉलेज में आती रहती है, ये डेटा गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है कि इस प्रोफेशन की जरूरत है, बच्चों को इस तरफ गाइड करें, उनका माइंड सेट चेक करते हैं, उनकी इंटरेस्ट देखते हैं। तो अब मेरी एक बेटी ने माशाल्लाह FSC में 950 मार्क्स लिए। अनफॉर्चुनेटली उसका एंट्री टेस्ट की वजह से एडमिशन नहीं हो सका, लेकिन उसका शौक था कि मैंने ना फार्मेसी करनी है ना मेडिकल करना है। तो उसने एडमिशन लिया कि मैंने MA इंग्लिश कर, और वो अपने शौक से वो MA। अगला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि ड्यूरिंग एजुकेशन या प्रोफेशनल लाइफ को कौन कौन सी हर्डल्स आएंगे एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ? एजुकेशन की में तो हर्डल्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ये था कि प्रॉपर फैसिलिटीज हमें केमिकल्स की या वो पसमानदा सूबों में वैसे अवेलेबल नहीं थी। और सबसे ज़्यादा हर्डल थी कि 1992 में मेरा एडमिशन हुआ, तो सारे स्कॉलरशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप, COT थे, ओवरसीज से सारे स्कॉलरशिप बैन हो। गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिकल कंडीशन इस तरह की कि कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो वो इंसान का जो एक एम था कि मैंने स्कॉलरशिप लेना है या बाहर जाके पढ़ना है, तो वो दरमियान में रह गया। और आखिरकार मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन एडमिशन PhD करनी पड़ी। तो वो जो मेरा गैप आया कि 1992 में मैंने लेक्चरशिप शुरू की और 2008 में मेरी PhD। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं कि HEC के स्कॉलरशिप्स हैं, बाहर के स्कॉलरशिप हैं, दूसरी गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं। इधर स्टूडेंट PharmD करता है, MPhil करता है, साथ उसको PhD में स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो उस जमाने में ये सबसे ज्यादा हर्डल थी। प्रोफेशनल लाइफ में या जो हर्डल्स मुझे फील हुई कि 1990 में MPhil, उस जमाने में MPhil की बहुत बड़ी वैल्यू थी। हमारा पायनियर बैच था पंजाब यूनिवर्सिटी का जिसने MPhil, पहले M.Pharm था 1 साल का, हमारा 2 साल का हुआ, तो हमने कोशिश करके उसको MPhil की डिग्री में कन्वर्ट करा। हमारा पायनियर बैच था पंजाब यूनिवर्सिटी का जिसने MPhil किया, और MPhil करके मैं 2 साल बेरोजगार रहा। बेरोजगार इन द सेंस ये कि मेडिकल रैप की MPhil करके ड्यूटी उसको मैंने शो की नहीं किया कि मैंने MPhil किया है, PharmD किया, या मैं टीचिंग कर रहा था तो उसमें मैंने ये शो किया कि मैं PharmD किया हुआ, ताकि अगर MPhil में बताता तो मुझे ना रखते, इतनी हाई डिग्री है उस जमाने में। तो वो, लेकिन ये हमें 2 साल बेरोजगार होना वो मुझे अभी तक मिला। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो था, वो जो टाइम है, अल्लाह ने मुझे यहाँ कंपनसेट कर दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 21 में एज ए डीन था। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। तो आपने वो पहले M.Pharm होता था, फिर आपने कोशिश के बाद उसको ना MPhil में कन्वर्ट, आप फाइनल बैच है पंजाब यूनिवर्सिटी का जिन्होंने वो वहाँ से MPhil किया। अब मैं बात करूँगा, हमारा जो फार्मेसी डिग्री है ये कि 5 ईयर प्रोफेशनल डिग्री है जो कि पाकिस्तान में ऑफर हो रही है। तो आप इसके कोर्स से या आपका जो इसका जो मीडियम है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? अगर मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें भारत की, तो वहाँ पे 2 डिग्री एट अ टाइम चल रही है। B.Pharm भी चल रहा है और PharmD भी चल रहा है। तो B.Pharm उनका 4 ईयर का है, PharmD 6 ईयर का है। वो जो PharmD है बेसिकली उन्होंने इसको क्लिनिकल टच ज़्यादा दिया। तो आप जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिग्री ऑफर हो रही है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? देखें, सेटिस्फेक्शन की बात तो इंसान को
करनी, मेरी साइंस में भी करनी पड़ी थी कि जो कोर्स जो कैरिकुलम डिज़ाइन हो रहा था, मैं उसका एक मेंबर था HEC का। HEC WHO और जो हमारे स्टेक होल्डर थे सारे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स से टीचर्स थे, वो उसके उस कमेटी के मेंबर थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन मेरी उधर कुछ सजेशन भी थी। मैं एक्चुअली कहता हूँ कि PharmD का कोर्स एक्चुअली हमने खींच के 5 साल का किया हुआ। पहले बी फार्मेसी 3 साल की थी, फिर इसको खींच के 4 साल का किया गया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया PharmD में डिग्री डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल का। मेरा जो ओपिनियन है कि ये सिलेबस बहुत सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है कि उसको 5 साल में, अगर हम इस सिलेबस को स्क्वीज करें तो ये 4 साल में भी कन्वर्ट हो सकता है और 4.5 साल में हो सकता है। मेरा जो ये है कि इसको 4.5 साल में कन्वर्ट करें, आखिरी जो 6 महीने ये स्टूडेंट्स को पूरी इंटर्नशिप करनी चाहिए, या तो उसकी चॉइस पे हॉस्पिटल में, या एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्लिनिक्स में जो एक नया इमर्जिंग प्रोफेशन है फार्मेसी में, या उसको कम्युनिटी फार्मेसी में, या उसको इंडस्ट्री में। ये उसको वो 6 महीने के बाद इंटर्नशिप के बाद जो एक प्रैक्टिकल हैंड्स वो मिलेगा स्टूडेंट्स को, उसकी बात ही और होगी, उसका बाद जो उसका जो स्कोप होगा उसका। दूसरी बात ये है कि हर जो ये प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट की काम है, हम थ्योरेटिकली उसको कब कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाहिद यूनिवर्सिटी थी या वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने अपना एक कम्युनिटी फार्मेसी का सेटअप बनाया। हमारी एक मॉडल फार्मेसी है जो हमारे मेडिकल सेंटर के साथ अटैच है, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, जहाँ पे हम सब्सिडाइज रेट्स पे मेडिसिन कम्युनिटी को भी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ उनको हेल्थ फैसिलिटीज, डॉक्टर की फैसिलिटीज है, इंडोर की आउटडोर की फैसिलिटीज है, हमारी एक पैथोलॉजिकल लैब है, उसमें भी हम सब्सिडाइज रेट अपने टीचरों को भी और कम्युनिटी को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस मॉडल फार्मेसी में हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट जो है ना, वो ड्यूरिंग एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी की वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं हर 2-2 महीने, मॉर्निंग के इवनिंग टाइम पे, और स्टूडेंट जो इवनिंग के है वो मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं। इसके साथ हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाहिद यूनिवर्सिटी है कि हमारा एक अपना इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसका हमने लाइसेंस लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको हमारा उसका प्रोग्राम था कमर्शलाइज करने का, कि वहाँ पे हमने लाइसेंस लिया मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें टैबलेट है, कैप्सूल सेक्शन है, पाउडर एंड सिरप है और ड्राई पाउडर्स है, ये सेक्शन हमने अप्रूव किया और लाइसेंस ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको कमर्शलाइज नहीं करें। लेकिन अभी मीनवाइल हमारे जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी मशीनों जो जितनी इंडस्ट्रियल की मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे हैं, वहाँ पे वो जाके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब है, वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तो वो एक ट्रेनिंग उनको हो रही है। तो मेरी एडवाइस है कि बाकी यूनिवर्सिटीज को भी एक प्रैक्टिकल हैंड देना चाहिए, इस तरह हॉस्पिटल फार्मेसी में या क्लिनिकल सेटअप में या इंडस्ट्री में उनको एक कंप्लीट हैंड देने, ताकि एक बच्चा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ट्रेंड होकर मार्केट में आए, तो उसकी वर्क और होगी जो एक सिर्फ एजुकेशन लेके जो मार्केट में जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ जो है ना बुकिश नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आप मेरे से पहले फील्ड में है, मैं आपकी काफी अर्से बाद आया हूँ। जब हमें आपने कहा कि हमारा जो कोर्स है इसको खींच के लंबा किया गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत रेपुटेशन है, सब्जेक्ट में रेपुटेशन है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में रेपुटेशन है, क्लिनिकल फार्मेसी में रेपुटेशन है, डिस्पेंसिंग और फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में रेपुटेशन है। ये रेपुटेशन कम करे तो ये 4 साल में भी हो सकता है, लेकिन मेरी ये राय है कि 4.5 साल तक पढ़ाएं, 6 महीने उनको बच्चों को साथ, अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगर कोर्स रिवाइज होता है, एक्सपेक्टेड है इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो HEC के साथ मीटिंग में अगर मैं इंशाल्लाह इसका मेंबर हुआ तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस तरह की इंडस्ट्रियल साथ पहले एक बनाया था कि आपको डिग्री उस टाइम मिलेगी 1 साल का, लेकिन उसमें बड़ा प्रॉब्लम था कि वो सेटअप नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो हमने विड्रा किया कि 1 साल की ट्रेनिंग का, कि 1 साल के बाद आपको जिस तरह मेडिकल डॉक्टर हाउस जॉब के बाद उनको MBBS की डिग्री मिलती है, तो हमने वो विड्रा किया। लेकिन हम ये फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये जरूर ये कहूंगा कि 4.5 साल का कोर्स और 6 महीने के साथ स्पेशलाइजेशन का तो हाँ, तो जब तक आप स्पेशलाइज नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, अब मार्केट में जाके आपकी वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो है। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितने इंस्टीट्यूट हैं जहाँ फार्मेसी की डिग्री ऑफर की जाए?
पब्लिक और प्राइवेट? मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 100 प्लस इंस्टीट्यूट हैं फार्मेसी के, जो पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर पे भी, जो ये PharmD की डिग्री प्रोवाइड करें। उसमें पायनियर तो पब्लिक सेक्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी था, और पब्लिक सेक्टर में पायनियर था ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज था कराची में, और यहाँ पे पंजाब में था लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जो मेरे ऑनर्ड सुपरवाइजर थे MPhil के प्रोफेसर डॉक्टर नईम ये मुजफ्फर, उन्होंने अपना खोला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कायम दायम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और ये तो ऑलमोस्ट 100 के करीब है जो PharmD को प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मेसी डिग्री जो है फार्मेसी भी पूरे पाकिस्तान में। तो आपने इससे पहले भी बात कर दी कि ये जो हमारा कोर्स है इसको खींच के लंबा किया गया 5 साल का, इसको 4 या 4.5 साल में भी कन्वर्ट किया जाता है। एक स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट को ऑफर की जा सकती है, उसकी बिल के ऊपर कि वो हॉस्पिटल में जाए, क्लिनिकल में जाए या रिटेल में जाए, जो वो उसकी बिल के ऊपर वो सारा डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब तकरीबन मैक्सिमम जो है हमारे जो एजुकेशन है वो स्पेशल सिस्टम पे कन्वर्ट होगी। अब कुछ इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो कि एनुअल सिस्टम पे भी फार्मेसी करवा रहे हैं, तो आपके सिस्टम में एनुअल सिस्टम बेहतर है या सेमेस्टर सिस्टम? देखिए, हमारे तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से या गुलिस्तान यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम। मेरे ख्याल में प्रोफेशनल डिग्री एनुअल सिस्टम पे होनी चाहिए। एनुअल सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एनुअल सिस्टम में आप 100% कोर्स पढ़ते हो, आपका पेपर बाहर से सेट होता है, आपकी एक्सटर्नल इवेल्युएशन होती है। पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी तक उन्होंने एनुअल सिस्टम में रखा है, BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने एनुअल सिस्टम में रखा है, यावर यूनिवर्सिटी ने एनुअल में रखा है, गोमल ने एनुअल सिस्टम पे रखा हुआ है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर में एनुअल सिस्टम में। इवन जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में सारा एनुअल सिस्टम है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री के लिए सेमेस्टर सिस्टम कभी सूट नहीं करता। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में अगर आप एक सिलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ा जाए, उससे एग्जाम लेने को इंटरनल में लेना होता है तो उसको, लेकिन वो जो एक प्रोफेशनल सेटअप है उसमें ये सूट नहीं करता मेरे ख्याल में। उसको टोटली एनुअल सिस्टम बिल्कुल एक लिमिटेड सा कोर्स होता है सेमेस्टर सिस्टम में, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें से कुछ ऐसी वजूहत है वो टॉपिक कवर नहीं होता। एक लिमिटेड सा कोर्स होता है, वो एक दो दिन में पढ़ के वो करते हैं। मैं भी आपकी तरह एनुअल सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी की है, पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, फिर उसमें फिर आपको और स्पेशल सिस्टम में आपको तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिलता। एनुअल सिस्टम में आपको 40 डेज की लीव्स मिलती थी, आपने वो सारा वो पढ़ना होता था। तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल डिग्री जो कोई भी है, चाहे वो फार्मेसी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसको एनुअल सिस्टम होना चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सारा रोल आ जाता है फार्मेसी काउंसिल का, चाहे वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है या प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल है। तो आप क्या व्यू है कि फार्मेसी काउंसिल इस सिलसिले में अपना कैसे किरदार अदा करता है? फार्मेसी देखें, काउंसिल का बड़ा किरदार होता है। इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, ये एग्रीकल्चर काउंसिल है। तो मैं काउंसिल को ये अभी अनफॉर्चुनेटली 1 साल से हमारी काउंसिल एग्जिस्ट नहीं कर रही। पहले काउंसिल की वजह से ये था, थोड़ा लोग काउंसिल की सख्ती की वजह, काउंसिल की डर की वजह से वंस इन्हें एडमिशन करते थे, उनकी स्टूडेंट की रिस्ट्रिक्टेड तादाद होती थी। 1 साल से काउंसिल नहीं है तो लोग भी थोड़े आज़ाद हो गए। अभी काउंसिल इस पे बहुत कंट्रोल कर सकती है। काउंसिल देखें, इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखती है कि जो कॉलेज के वो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मिनिमम पे कितनी होगी, वो इसका उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। उनकी इवन उनकी जो रिहाइश है उसको भी चेक करती है कि हमारे जो टीचर हैं वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फार्मेसी काउंसिल ने अपना रोल को कम किया हुआ है। अगर फार्मेसी काउंसिल सही तरह से अपने रोल को इम्प्लीमेंट करे जो ड्रग एक्ट के मुताबिक उनको मिला है, तो ये फार्मेसी प्रोफेशन भी राइज हो सकता है। इसका इम्पैक्ट भी दूसरी काउंसिल की तरह पूरा सोसाइटी पे पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से काउंसिल को स्ट्रॉन्ग किस्म की काउंसिल होनी चाहिए जो हर चीज को मॉनिटर करे, इन एडिशन टू एजुकेशन, उनकी एडमिशन को, उनके एग्जाम को, और अच्छी तरह से एडवाइस करे इंस्टीट्यूशन को जो चल रहा रहे हैं कि इसका ये सेटअप होना चाहिए और उसको एक स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए। बिल्कुल, काउंसिल की आपने बात की तो फीस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में।
अब हम अगर हम इंजीनियरिंग काउंसिल की या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की बात करते हैं, उन्होंने एक फीस स्ट्रक्चर बना दिया है, पब्लिक सेक्टर का ये है, प्राइवेट सेक्टर का ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि फार्मेसी में इस तरह नहीं है। पब्लिक सेक्टर की फीस और जो प्राइवेट सेक्टर है, हेल ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी उनको अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए कि एक सेट फीस करते हैं, पब्लिक सेक्टर कितनी होगी और प्राइवेट सेक्टर कितनी होगी। मुझे तो समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी भी है कि नहीं कि फार्मेसी काउंसिल, 1 साल से फार्मेसी काउंसिल स्टैब्लिश ही नहीं या उसकी सिलेक्शन ही नहीं है, उसके मेंबर नॉमिनेट नहीं हुए। गवर्नमेंट की सिर्फ जो प्रायोरिटी में पीएमडीसी है या इंजीनियरिंग काउंसिल है। तो अगर ये हो जाए तो एक स्टैंडर्ड, जैसे पीएमडीसी ने एक सेट कर दिया जी आपने बीडीएस कितनी फीस लेनी है, एमबीबीएस की एडमिशन, इवन इनका यूएचएस उनका एडमिशन कर रहा है, उनकी लिस्ट में ये भी उनका एक सेटअप हुआ लास्ट ईयर से। लेकिन हमारे यहाँ फार्मेसी काउंसिल को भी एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए भाई। मिनिमम कोई 2.5 लाख ले रहा है, कोई 4 लाख ले रहा है, कोई 2.5 लाख पर सेमेस्टर ले रहा है, कोई 2.5 लाख पर एनएम ले रहा है। ये क्या गवर्नमेंट, और उसके बाद उनकी सीटों की एलोकेशन करे, किसी को 100 दी है मॉर्निंग में, किसी को 100 दूसरे सेक्शन की दे दी है। तो ये अपने उसको देखे कि हम हमारी पाकिस्तान में कितने फार्मासिस्ट की जरूरत है, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो उसके हिसाब से उनको सीटें एलोकेट करे। तो ये भी इसको अपने स्टैंडर्ड सेटअप कर लेने चाहिए फार्मेसी काउंसिल को, फीस के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से भी। उनके मिनिमम वो जो दिए तो हुए उनकी वेबसाइट पे, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं। बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक सेक्टर की फीस कुछ हजार रुपए है और प्राइवेट सेक्टर की एक इंस्टीट्यूट की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ पे जो वो फीस चार्ज कर रहे हैं वो तकरीबन 4 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा कुछ की 3 लाख है, कुछ की 2.5 लाख है, मतलब लाखों में चलेगी है फीस। और जब वो लाखों में फीस स्टूडेंट देता है तो जब वो मार्केट में निकलता है तो उसकी कोशिश भी होती है कि मैंने कितने लाख फीस दी है। अब घर वालों की तो बात भी लग जाती है कितने लाख हमारे बच्चे बेटे या बेटी पे लगा है, तो जल्दी उसका वापस भी करें। तो फिर वो गलत तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं और एक जायज फीस अगर उनसे वो ले जाए, इसमें जाहिर बात है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल आएगा, काउंसिल का बहुत ज्यादा रोल आएगा। तो उनको एक अच्छे तरीके से वो रोल जो है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब जो ये जो कोरोना का पीरियड गुजरा है, हर चीज जो है ना वो ऑनलाइन हो गई, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम से आप जस्टिफाई किस तरह का ये एग्जाम किया गया? देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में जो रिमोट एरिया में प्रॉब्लम था, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली। ऑलमोस्ट वो तो ये था कि जस्टिफिकेशन इस तरह से बन सकती थी कि 75 to 80% तक अटेंडेंस होती थी, हम उसको जस्टिफाई करते थे चले ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन कभी साउंड का प्रॉब्लम आ जाता था, कभी और इशू आ जाते थे। जब लास्ट में अटेंडेंस लेने लगते थे वो कहते थे कि जी हैंड्स ऊपर करो, उसमें जूम में एक ऑप्शन था, तो लोग मोबाइल ऑन करके ना या लैपटॉप ऑन करके सो जाते थे। या रमजान में जो हम क्लासेस लेते थे तो वो इस तरह से सोता। तो मैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम। और दूसरी बात ये है कि बाकी डिग्रीज तो ठीक है, आर्ट्स है, साइंस वो है, जहाँ बीएससी या एमएस प्रोग्राम है, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री जहाँ आपने जाके किसी लाइफ सेविंग प्रोफेशन में, आप डॉक्टर्स हैं या आप इंजीनियर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, लाइफ सेविंग प्रोफेशन जिसमें जो स्पेशली फार्मेसी में या एमबीबीएस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए, फिजिकल होने चाहिए। तो जो फिजिकल का इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन का नहीं। अभी भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन पहले सिस्टम नहीं चल रहा था, अभी सिस्टम चल रहा है, उसमें फिर बुकिंग होती है, फिर वो सिस्टम भी उस लोगों को फेमिलियर होने में भी टाइम लगता है। उसमें हमने एक दफा मॉक टेस्ट लिया, लोगों को ट्रेनिंग दी स्टूडेंट्स को, इसके बाद हमने उसको एग्जाम लिया। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 95-98% तक हमारा अटेंडेंस है या वो पासिंग है, लेकिन फिर भी जो फिजिकल एग्जामिनेशन का वो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बात करें वर्चुअल सिस्टम की, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सारी ऑनलाइन है। वहाँ पे भी उन्होंने एग्जाम नहीं लिए मिड टर्म, उन्होंने उनका जो असाइनमेंट थी या क्विज की वेटेज बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, फीस लेने की खातिर उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम वो लिया।
ताकि उनका कोर्स ऑनलाइन जो है वो टाइम पे हो जाए, और फीस किसी तरीके से स्टूडेंट से वो ली जाए। वहाँ पे आपकी जो है जो कवरेज है ड्यूरिंग एग्जाम वो भी आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मेरा स्टूडेंट है बड़ा तेज, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो चुकी है कि ना चाहते हुए आप स्टूडेंट से नहीं, नकल करने से नहीं वो उसको किसी भी तरीके से उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये तो आपने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम ठीक है वो ड्यूरिंग क्लासेस, लेकिन जो एग्जाम है मेरे ख्याल में खासकर प्रोफेशनल एग्जाम जो है वो ऑन कैंपस ही होना चाहिए, ऑन कैंपस फिजिकल होना चाहिए, ऑन कैंपस फिजिकल। आप उसको एसओपीज को फॉलो करें, कंप्लीटली एसओपीज को फॉलो करके आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। अब जैसे अभी इजाजत दी गवर्नमेंट ने, बास जैसे मेडिकल कॉलेज के ऑनलाइन हुए, फिजिकल हुए, उन्होंने एसओपीज को फॉलो किया, तो इस तरह किसी एक क्लास को बुला के फिजिकल एग्जाम हो सकते हैं। अब बाउलिंग ज़करिया यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, उसने फिजिकल एग्जाम करवा रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन किया लेकिन उनका वो नाकाम हो गया, वो दोबारा दे आर गोइंग टू बैक टू फिजिकल। बिल्कुल ऐसे ही। आप बात कर लेते हैं कि फ्यूचर ऑफ फार्मेसी आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? देखें फार्मेसी का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों नए सुनने वाले हैं, नए जो बच्चे हैं हमारे, एमएससी के फ्यूचर फार्मेसी का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस तरह, अगर गवर्नमेंट ये जो ड्रग सेल लाइसेंस को फार्मासिस्ट के, क्योंकि फार्मासिस्ट का मेन रोल है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन उस पूरी कम्युनिटी के साथ होता है। वहाँ पे वो माइनर इलनेस पे सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकता है, लोगों को एडवाइस भी दे सकता है। दूसरा उनको जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है या एपिडेमिक डिजीज है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है, उनको साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो अल्टीमेटली देखिए आपने डायग्नोज करा लिया, टेस्ट करवा लिया, तो पेशेंट ने तो मेडिसिन इस्तेमाल कर लिया, और मेडिसिन उसको किसने, अगर मेडिसिन उसने फार्मासिस्ट ने डिलीवर की, अगर गवर्नमेंट वो पाबंदी लगा दे कि मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बगैर फार्मासिस्ट के नहीं चलेगा, और फार्मासिस्ट की वहाँ मौजूदगी होगी और उसकी मिनिमम सैलरी ग्रेड 17 के बराबर होगी, तो फार्मासिस्ट वहाँ पे काम करेगा। तो उसका मेन रोल जो कम्युनिटी फार्मेसी में, जब तक गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी लॉ, वो लॉ बना हुआ है, गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड 4 साल 5 साल हर दफा एक्सटेंड करे दी। अब 2022 के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। फिर देखें ये रिटेलर या ये जो है होलसेलर क्या करते हैं। अब होलसेलर पे तो पाबंदी लगी है, चले फार्मासिस्ट वहां पे बैठता है। जब कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का होगा, देखें बाहर सबसे ज्यादा फार्मेसी की वर्थ कम्युनिटी फार्मेसी, अमेरिका में चले जाएं, इवन अफगानिस्तान में भी, अब ईरान में भी, ये इंडो पाक हमारा वाइड एरिया है कि यहाँ पे बगैर फार्मासिस्ट हायर कर लेते हैं। अगर फार्मासिस्ट बेचारा 5 साल के बाद अगर प्राइवेट में आता है, लाखों रुपया फीस दे के आता है, तो उसको तनख्वाह के गवर्नमेंट के चपरासी जितनी 20-25 हज़ार तक तनख्वाह मिलती है। वो कम्युनिटी फार्मेसी में किसी क्लिनिकल मेडिकल स्टोर पे जाए या फार्मेसी में, उसको 20-25 हज़ार मिलती है अपने लाइसेंस के साथ, अपनी कैटेगरी के साथ, और इंडस्ट्री में जाएगा उसको 25-30 हज़ार रुपये दे देंगे स्टार्ट में। तो ये एक चपरासी की गवर्नमेंट सेक्टर पे इतनी कम अज कम तनख्वाह। तो ग्रेड 17 की हमारे यहाँ कम अज कम तनख्वाह 60-65 हज़ार। तो कौन फार्मासिस्ट, तो ये लाखों रुपए खर्च करके बाद में जब माशरे में जाके वो जाते हैं, जी देखो इतने लाख रुपए इसने फीस दी और इसको मिला क्या, तो उसका क्या असर क्या पड़ेगा। तो प्रोफेशन का फ्यूचर है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे। अगर क्लिनिकल सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले हम जब एमफिल कर रहे थे न्यू हॉस्पिटल में 5 फार्मासिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 50 फार्मासिस्ट हैं न्यू हॉस्पिटल में, तो एक प्रोफेशन राइज हुआ। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी आ जाए, उनकी ड्यूटीज उनके प्रॉपरली आ जाए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, तो ये प्रॉपर सेफ मेडिसिन, इकोनॉमिकल मेडिसिन, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको विजिलेंस और उनकी बेड साइड मॉनिटरिंग हो, तो ये एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स या ड्रग इंटरेक्शन का ये खात्मा हो सकता है, काफी हद तक हो सकता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्कोप, अभी लास्ट ईयर 500 पोस्टें आई, अब 100-150 पोस्टें और वो है वेकेंट है, वो और उसके साथ नेक्स्ट पोस्टें मिला के 200-250 फिर आ जाएंगी। तो फार्मेसी का स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर पे अभी चेन फार्मेसी खुल रही है, क्लिनिक्स खुल रहा है, फजलदीन खुल रहा है, तो ये भी एक स्कोप ही है ना कि वहाँ पे फार्मेसिस्ट का स्कोप पहले कहाँ था ये चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने जिक्र किया डॉक्टर जमशेद का, उन्होंने एक दफा किसी सेमिनार में बता रहे थे, उन्होंने इस मूवमेंट चलाई, तो जब हम बता रहे फार्मेसी, लेकिन जब ऑफिस में कहते ये फार्मेसी को उन्होंने फारसी बना दिया तो इस तरह की चीजें हैं।
और आजकल जो प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई है, उसमें जो हमारे कम्युनिटी के जो डॉक्टर लतीफ़ शेख हैं या सुल्तान गनी हैं या अयाज कियानी है, ज़ाहिर बात है अपने लेवल पे वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ब्यूरोक्रेसी में आपकी रिलेटेड प्रोफेशन के लोग नहीं होंगे, आपका काम नहीं हो सकता। तो एक प्रोफेशन उम्मीद है इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो अपना किरदार अदा, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन अभी तक आपके टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है। पहले फार्मेसी को कोई जानता नहीं था, फार्मेसी को समझाना पड़ता था, दवाइयां तो डॉक्टर बन रहे हैं जी, दवाइयां बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि कुछ मैंने इंडियंस का किया तो उसने कहा कि जब हम फार्मेसी करेंगे तो आपका बेटा क्या करेगी, तो वो कह रहे थे करना क्या, उन्होंने दवाइयों की दुकान खोल लेंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट था पहले। लेकिन अब तो अभी जब मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट है, जहाँ पे फार्मासिस्ट है वहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। फार्मासिस्ट को पहचानना शुरू है कम्युनिटी, ये सबसे बात है कि फार्मासिस्ट का एक इंट्रोडक्शन हो गया, ये चेन है फार्मासिस्ट। ये सारे आपने सारे फार्मेसी के बारे में बताते, कौन सा का क्या रोल है, डिग्री कैसे होनी चाहिए। अब अपने बारे में बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है रिगार्डिंग फार्मेसी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर गोल तो मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मेरा एम था, मैंने यहाँ पे एमफिल कराया, पीएचडी कराया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 के करीब पीएचडी यहाँ से पास आउट हो गया अंडर माय सुपरविजन, 80 के करीब एमफिल मैंने यहाँ प्रोड्यूस किए। मेरा गोल तो ये अभी 1-2 साल रह गए हैं, 2-3 साल रिटायरमेंट के, तो इसके बाद मेरा ये है कि देखें ये जैसे फॉरेन में मेडिकल कॉलेज, फॉरेन में फार्मेसी के बाद भी जैसे आईवी इंजेक्शन, आईवी एडमिक्शन बनाना, अब वहां पे तो हॉस्पिटल में एक नर्स इंजेक्शन लगा देती है, एबल लगा देती है, वो लगा देती है, ये आईवी एडमिक्शन बनाने का भी कोर्स होते हैं 6 महीने के। इस तरह कैंसर मेडिसिन प्रिपरेशन का, कैंसर मेडिसिन एक स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर के तहत उसके 6 महीने के कोर्स होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी का 6 महीने का, साल का डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स जब इंसान करे, देखें एमफिल पीएचडी हर जगह हो रही, फार्मडी के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए। जब वो मार्केट में जाए, उसने हॉस्पिटल फार्मेसी का एडिशनल कोर्स किया हो, सर्टिफिकेट किया हो, या उसने डिप्लोमा 1 ईयर्स का या 3 साल का किया वो किया हो, या उसने ट्रेनिंग की हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना और पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल होती है। तो मेरा इरादा है कि मैं इधर इस तरह के अपने अथॉरिटी से सब मिलकर ना इस तरह के सेटअप बनाऊं कि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट पे, कम्युनिटी फार्मेसी पे, क्लिनिकल फार्मेसी पे, आईवी एडमिक्शन बनाने पे, कैंसर प्रिपरेशन, कैंसर ड्रग को प्रिपेयर करना, उसको बनाने के लिए उसके छोटे सर्टिफिकेट स्टार्ट करें, शॉर्ट कोर्सेज किया 6 महीने का ड्यूरिंग वो एजुकेशन ही साथ वो करते रहे। रेगुलेटरी अफेयर्स में फार्मासिस्ट बड़ा अच्छा काम कर सकता है, उसका ये फोरेंसिक में हो सकता है, फोरेंसिक में ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग हो जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन में काफी अच्छा काम कर सकता है, मैं न्यूट्रिशन में काम कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट एमबीबीएस के मुकाबले में ज्यादा न्यूट्रिशन का नॉलेज रखता है, उसमें बड़ा अच्छा काम कर सकता है। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके रिगार्डिंग फार्मेसी प्रोफेशन, आपने कैसे ज्वाइन किया, बाय फर्स्ट चॉइस ही या सेकंड चॉइस ही, आप एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट के डीन हैं, आपने वहाँ पे एमफिल प्रोग्राम स्टार्ट किया, पीएचडी प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, और यंग ग्रेजुएट्स के लिए आप यंग ग्रेजुएट्स को आप क्या सजेशन दें? मैं यंग ग्रेजुएट्स को ये सजेशन दूंगा कि भाई आप आओ, अल्हम्दुलिल्लाह एक एम के साथ आओ। अगर फार्मेसी में एडमिशन हो जाए तो फिर कश्तियां जला के आओ। देखें रिस्क अल्लाह ताला ने हर एक को के लिए रिस्क लिखा है। जिस प्रोफेशन में आप मेहनत करोगे ना, अल्लाह ताला आपको राज करेगा, और ये मेरा ईमान है। और मैंने लोगों को पाया, और लोग मैं फाइनल ईयर में एक क्लास लेता हूँ, जब इनका रिजल्ट एग्जाम होने के करीब होता है, आखिरी मेरी क्लास होती है, तो मैं इनको एक कप ऑफ टी ऑफर करता हूँ स्टूडेंट्स को, एक मेरी तरफ से एक फेयरवेल होता है, उसमें फिर मैं उनको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किस तरह मैंने इस मेहनत करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अब स्टूडेंट चाहते हैं कि हम जंप मार के तो हम डीन बन जाएं, या जंप मार के हमारे पास पहले दिन से गाड़ी हो, बंगला हो। देखें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब आप मेहनत करेंगे ऑनेस्टी से, अपने प्रोफेशन को अप्लाई करेंगे ऑनेस्टी से, तो अल्लाह ताला उसमें जरूर सक्सेस देता है। तो मैं ये यंग फार्मासिस्ट को, यंग ग्रेजुएट्स को ये मान के कि हर काम को करो मेहनत से, ईमानदारी से, फिर देखो उसका रिजल्ट, फिर अल्लाह पे छोड़ो। बिल्कुल ऐसे ये अल्लाह जरूर आपको नवाजेगा जब आपको जरूरत हो। ये नहीं कि जब आप चाहें तो उस टाइम हो। अल्लाह जब आपको जरूरत होती है ना, अल्लाह आपको जरूर देता है। बिल्कुल हर वक्त इंशाल्लाह। ये नहीं कि आप चाहें आपको मिल गया,
अल्लाह जब इंसान को देखता है, जब उसकी जरूरत होती है वो चीज उसको, बिल्कुल ऐसे हर काम ये ईमान की बात है। देखें हम सफर में जा रहे हैं, हमारा ईमान है ना, हम दुआए सफर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला पे ईमान है ना, हमें तो ऐसे हमने अल्लाह को नहीं देखा, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ईमान है ना कि अल्लाह है। तो ये इस तरह जब हम ईमान के तहत काम करेंगे ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह जरूर। तो मैंने लोगों को देखा कि आज हमारे स्टूडेंट हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, इतनी पोजीशन में। एक हमारे स्टूडेंट ने PharmD करके डायरेक्ट उसमें फोरेंसिक लैब में लगे 1.5 लाख रुपए लिए। बिल्कुल ऐसे ये अल्लाह ताला ने उसने मेहनत की, अल्लाह ने उसका। बिल्कुल अल्लाह ताला जो है ना किसी की मेहनत को रायगा नहीं। हाँ उसमें देर हो सकती है, थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन मैं इसकी मिसाल कुछ ऐसे करता हूँ, चोर की जो चोरी कर मेहनत करके करता है, जितनी बड़ी उतनी मेहनत, अल्लाह उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने का। हाँ आपकी अप्रोच और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और यंग ग्रेजुएट्स के लिए मेरे ख्याल में आप एक मिसाल हैं कि आपने कैसे अपनी फार्मेसी एजुकेशन हासिल की। होप्स और डिसहोप्स जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, वो आपका ये 92। लेकिन बहुत शुक्र, और अल्लाह का शुक्र नहीं करता कि अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला नवाजता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यंग ग्रेजुएट्स के लिए मेरे ख्याल में जब ये इंटरव्यू ऑन एयर जाएगा तो बड़ा कुछ आपसे सीखेंगे, और हमारे लिए बेसिकली सीनियर्स ने काम करना होता है, सीनियर्स आपके लिए एक रोड मैप अदा करते हैं। और आखिर में सारे एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर एक शील्ड है मेरी तरफ से, मैंने एक सोसाइटी बनाई हुई है, नेशनल डायटेटिक एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी पाकिस्तान के नाम से, उसकी तरफ से एक छोटा सा एक शील्ड है। ये इंशाल्लाह आपको याद दिलाएगी कि आपने मेरे साथ एक छोटा सा सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।